हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन अर्लियर क्लासेस, in earlier lectures, we have discussed about types of reproduction, sexual and asexual. So in today's lecture, it is a short video in which you are able to learn about major parts of the flowering plants. So basically today I will discuss about the sexual reproduction in flowering plants. Basically, structure of a flower means एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग बात करते हैं, ये अपना एक रफ डायग्राम है फ्लावर का, और ये जो एक्चुअली आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज फॉलोड बाय एनडीए, बेसिकली नीट, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट और सीयूईटी एग्जाम्स लाइक एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So here we have a flower. Basically this flower is taken from a plant that is basically known as typical angiosperm. Its name is Capsula. Capsula is a typical angiosperm since it has almost all characters of a angiosperm. It is a monocot. Clear? It is a monocot plant. Typical plant, here typical plant means mostly characters of angiosperm are found in this plant, that's why it is called as typical angiosperm. Basically this is a flower of Capsula. Yes, इस कैप्सुला प्लांट को हम लोग शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं क्योंकि उसका फ्लावर समवॉट ट्रायंगुलर होते हैं, और जो शेफर्ड जो चढ़वा होता था उसके जो पर्स होते थे कुछ इसी टाइप के होते थे. ठीक, तो हम लोग बात करते हैं पहला इस पार्ट से. जैसा कि हम जानते हैं फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम. ठीक, फ्लावर हैज 4 होल्स. ये 4 घेर में प्रेजेंट होते हैं. आउटर साइड में आपके पास सेपल्स होंगे, देन फिर आपके पास पेटल्स होंगे कलरफुल, देन फिर आपके पास होंगे मेल पार्ट एंडोशियम, देन बीच में होंगे गाइनोशियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस ऑफ द ओवरी, दिस बेस ऑफ द ओवरी, जहां जिसके ऊपर ओवरी लोकेटेड है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? थैलेमस. दूसरी बात, ये जो कनेक्टिंग पार्ट है, जिससे फ्लावर का वो पार्ट जिससे वो अपने स्टेम से अपने प्लांट के पार्ट से अटैच रहेगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं. पेडिसिल, इट इज द कनेक्टिंग पार्ट. क्लियर? So we have another part. It is green in color. This is basically sepals. This is basically sepals. It is a unit of calyx. We will discuss it later. The second one is the petal. It will be colorful. This is green. This is colorful. And the main reason behind giving colorful petals for the attraction of pollinators, for the attraction of insect. बेसिकली पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये पेटल्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं. सो इन नेक्स्ट वी हैव अनदर पार्ट. दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. बेसिकली इट इज stamen, and this whole part is called as pistil or carpel. Pistil or carpel. Pistil or carpel, basically the same name. If I say you that this part are the outer parts for the protection of the flower or the birds, or the male part and the female part, that's why it is considered as accessory hole. Accessory hole. It is not main organ. Basically it provide petal is for attraction, this is for protection. It is a modified leaf. The next 2 part, these are called as reproductive part. It is reproductive part or the main sex organ. Clear? This is basically the female part
दैट वी कॉल एज गाइनोशियम। अच्छा, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम और उनके यूनिट्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं एंड्रोशियम, तो बेसिकली कलेक्शंस ऑफ स्टामेन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम, कलेक्शंस ऑफ एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, कलेक्शंस ऑफ स्टामेन को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो एंड्रोशियम का यूनिट क्या हो गया, स्टामेन हो गया। वहीं पर पिस्टिल या कार्पेल के कलेक्शंस को बोलते हैं गाइनोशियम। सो गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल, gynoecium represents the female reproductive part, whereas androecium represents the male reproductive part in the flowering plant. Androecium का यूनिट stamen, gynoecium का यूनिट pistil और carpel. So here another we have part. This is the thalamus and this is the pedicel. This whole part, this black part is the androecium, means it is the stamen. In stamen, stamen has two parts, another at distal end, another long thread like structure. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। This one is the anther. So stamen has two parts, anther and filament. Anther and filament. Whereas this red part is called as the unit of gynoecium. Unit of gynoecium means इसका यूनिट क्या है, पिस्टिल और कार्पेल। इनके तीन पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, तीन पार्ट। पहला होगा हमारे पास टॉप मोस्ट वाला, दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। इट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिससे पोलन ट्यूब अंदर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं ना, दैट्स माय स्टाइल, बट वो वाला स्टाइल नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल और कार्पेल एंड दिस पार्ट इज द ओवरी। दिस पार्ट इज द ओवरी। क्लियर है? तो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पिस्टिल या कार्पेल का पार्ट है। ओवरी क्या है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अलग अलग आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगी। जैसे आपको जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लोक्यूल। एंड लोक्यूल का मतलब क्या होता है, कैविटी। लोक्यूल का मतलब क्या होता है, कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल होंगे। जब फर्टिलाइजेशन होगा, इसी ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक होता है। और एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या होता है, एक्चुअली एम्ब्रॉय की फॉर्मेशन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ओवरी का वो वाला पार्ट जिससे ओव्यूल्स अटैच होती है ओवरी के वाल से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और जो ये वाली स्ट्रक्चर है, जो कैविटी ओव्यूल के अंदर वाला पार्ट है, मतलब लोक्यूल के अंदर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्लियर है? ये ओव्यूल से बनेगा सीड और पूरे के पूरे ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो इट इज ट्रू फ्रूट। अदर देन ओवरी मतलब किसके अदर पार्ट से भी फ्रूट बन सकते हैं, या मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। मतलब ट्रू फ्रूट उसे बोलेंगे जो कि ओवरी से बने, अदर देन ओवरी पार्ट से बने तो हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये आपका हो गया पिस्टिल या कार्पेल। यूनिट है किसका, किसका यूनिट है, गाइनोशियम का। सो जब हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला की बात करते हैं, वहां पर कुछ हम लोग इस तरीके से पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज करते हैं, के सी ए जी। हियर के फॉर कैलिक्स, in next we have corolla, then we have androecium, in next we have gynoecium. gynoecium का यूनिट पिस्टिल और कार्पेल, एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन, कोरोला का यूनिट पेटल, कैलिक्स का यूनिट सेपल। कैलिक्स के, कोरोला सी, एंड्रोशियम ए, गाइनोशियम जी। ये इनके सिंबल्स हैं जो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये आपका पार्ट है, बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। किसका, कैप्सुला का। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट कॉल्ड गोएज, ही कॉल्ड द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्योंकि शूट में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर जो इंटरनोड होते हैं ना काफी रिड्यूस्ड होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक नोड के लेवल पे ये वाला है, दैट इज बेसिकली सेपल्स, देन फिर आपके पास पेटल्स, देन फिर आपके पास एंडोशियम, देन लास्ट में पास क्या है, गाइनोशियम। तो बेसिकली नोड है, नोड है, नोड है, अलग अलग नोड्स पे अलग अलग पार्ट प्रेजेंट है, बीच में इंटरनल स्पेस इट इज वेरी वेरी मच रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू गोएथ, गोएथ एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड शूट। एक साइंटिस्ट, एक आपके पास और एक विद्वान आदमी है, आपने नाम सुना होगा पंचानन महेश्वरी, जो आप एनसीईआरटी किताब डिस्कस करते हैं क्लास 12 की, जो बॉटनी वाले पार्ट है उसमें इसका काफी योगदान है। इसलिए अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है कि एम्ब्रायो के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी इन द वर्ल्ड कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। दूसरी बात, अगर हम लोग इंडिया के लेवल पे देखें तो पंचानन महेश्वरी, क्योंकि हम लोग इसको हर फादर को हम लोग इंडिया के लेवल में भी देखते हैं। इसका योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने काफी कुछ बॉटनी में हमें बताया है और हम लोग एनसीईआरटी में उसी के योगदान के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है ना। पंचानन महेश्वरी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी इन इंडिया। इज इट क्लियर? ये कुछ मोटा मोटी पार्ट्स हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बाकी डिटेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।